गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ कुछ नए क्वेश्चंस, अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ ओबीसी के, जो कि बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि हर एग्जाम में रिपीट होते हैं और वो अक्सर हम गलत करके आते हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर लो और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि कोई हमारी नई वीडियो आए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली फिजियोलॉजिकल चेंज इन प्रेगनेंसी। Which of the following is the least likely physiological change in pregnancy? Option A, increase in the intravascular volume. Option B, increase in cardiac output. Option C, increase in stroke volume. Option D, increase in peripheral vascular resistance. So question is very confusing, so please guess the answer. What will be the right answer? Please guess, and you can also comment in comment box. If you know the answer, then comment immediately. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देती है और आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए और मोटिवेट करती है। So the first question answer is D is the right answer. इस क्वेश्चन में पूछा था कि which of the following is the least likely physiological change in pregnancy. So increase in intravascular, yes, बट यहाँ लीस्ट पूछा था तो आंसर होगा यहाँ डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, HCG is secreted by option A, trophoblast cells, option B, amniotic membrane, option C, fetal yolk sac, option D, hypothalamus. So please guess the answer, and the right answer is trophoblast cell. Option A is the right answer. HCG is secreted by trophoblast cells. And what is the doubling time of HCG? Anyone? Doubling time is 48 hours. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एल्ब्यूमिन टू ग्लोबुलिन रेशियो नियर टर्म इज। ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 1:1, and option C 2:1, and option D 1:7:1. So please guess the answer. Very important question from exam point of view. So the right answer is option B
The albumin to globulin ratio near term is 1:1. And one additional information I would like to give to you all, that upper and lower body surface ratio is 1:7:1. So please remember, if examiner asks like this, what is the ratio of upper to lower body ratio, then the right answer will be 1:7:1. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन प्रेगनेंसी द पीक लेवल ऑफ HCG occurs at, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ऑप्शन ए अर्ली जेस्टेशन, ऑप्शन बी मिड जेस्टेशन, ऑप्शन सी लेट जेस्टेशन, ऑप्शन डी प्री लेबर। क्वेश्चन दिखने में दी है बट है नहीं एक्चुअल में। So in pregnancy the peak level of HCG occurs at early gestation. So the option A is the right answer. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in pregnancy all occurs except, ऑप्शन ए इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन बी डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ऑप्शन सी इंक्रीज MCV, ऑप्शन डी इंक्रीज ग्लोमेरुलर फ्लो। सो प्लीज गेस द आंसर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इन प्रेगनेंसी द ग्लोमेरुलर फ्लो इज sorry the right answer is option B. Option B is the right answer. In pregnancy, the decreased blood volume does not occur. Except पूछा है दोस्तों। Let us move to question number, next question की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। Surfactant appears in amniotic fluid at, very important question again. Option A 20 weeks, option B 24 weeks, option C 28 weeks, option D 30 weeks, and the right answer is option B. Surfactant appear in amniotic fluid at 24 weeks and generally appear in utero 28 to 32 weeks. Let us move to question number, next question, question number not mentioned. Again very important question. In pregnancy CVP, is there any change occurred to CVP? Option A rises, option B no change, option C decreases, option D doubles. So please guess the answer and the right answer is no change occurred to the CVP during pregnancy. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। If the large fontanelle is presenting part, what is the presentation? Very important question. क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें एक बार।
If the large fontanelle is presenting part, what is the presentation? Option A, vertex. Option B, sinciput. Option C, breech. Option D, haze. Option E, brow presentation. So the right answer is option B. If the large fontanelle is presenting part, then the sinciput is the presentation. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं हर क्वेश्चन की अपने आप में एक वैल्यू है दोस्तों। रिपीटेटिव लेट डिसेलरेशन मोस्ट कॉमनली इंडिकेट। अगर रिपीटेटिव लेट डिसेलरेशन आ रहा है तो वो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए, फीटल एसिडेमिया। ऑप्शन बी, फीटल हाइपोक्सिया। ऑप्शन सी, फीटल स्लीप स्टेट। ऑप्शन डी, फीटल एफर्ट्स ऑफ मैटरनल सेडेशन। So the right answer is option B, fetal hypoxia. Repetitive late deceleration indicates fetal hypoxia. नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, an involuted corpus luteum become an hyalinized mass known as option A, corpus delicati. Option B, corpus granulosa. Option C, Graafian follicle. Option D, corpus atretica. Option E, corpus albicans. So the right answer is option E is the right answer. An involuted corpus luteum become hyaline mass that is known as corpus albicans. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, gonadotropin releasing hormone GnRH stimulates the release of option A, opiate peptides. Option B, adrenocorticotropic hormones. Option C, LH. Option D, growth hormone. So GnRH stimulates the release of LH. Option C is the right answer दोस्तों। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर presumptive skin sign of pregnancy except option A, कोलाज्मा। option B, maculopapulosis। option C, linea nigra। option D, stretch marks। तो ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, हर कोई आंसर कर सकता है। आंसर इज बी, बिकॉज एक्सेप्ट बी all are seen as presumptive skin signs during the pregnancy। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। द इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम इन नॉर्मल प्रेगनेंसी इज मेड अप ऑफ ऑप्शन ए, प्लाज्मा ओनली। ऑप्शन बी, एरेथ्रोसाइट ओनली। ऑप्शन सी, मोर प्लाज्मा देन एरेथ्रोब्लास्ट। ऑप्शन डी,
more erythrocytes than plasma। दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है तो कंफ्यूज ना हो। तो प्लीज आंसर गैस करें और कमेंट करें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, the increase in the blood volume in the normal pregnancy is made up of more plasma than erythroblasts। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इन द fetus the most well oxygenated blood is allowed into the systematic circulation by which of the following। fetus के अंदर well oxygenated blood is allowed into systemic circulation कौन से सिस्टम के द्वारा अलाउ होता है? तो ऑप्शन ए डक्टस आर्टरियोसस, ऑप्शन बी फोरामेन ओवल, ऑप्शन सी राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन डी लिगामेंटम टेरिस। तो प्लीज गेस द आंसर एंड डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे गलत होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। प्लीज गेस द आंसर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द follicular growth in non-ovulating follicle is usually followed by option A ovulation, option B cyst formation, option C atresia, option D arrest, option E regression। So follicular growth is usually followed by atresia। C is the right answer। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ड्रग डोंट क्रॉस द प्लेसेंटा। इनमें से कौन सी ड्रग प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती? ऑप्शन ए हेपेरिन, ऑप्शन बी वारफेरिन, ऑप्शन सी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन डी डिजॉक्सिन। तो प्लीज कमेंट फास्ट करें क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हेपेरिन डोंट क्रॉस द प्लेसेंटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। A biophysical profile includes all of the following assessment parameters except option A fetal movement, option B fetal weight, option C fetal tone, option D fetal breathing movements, option E amniotic fluid volume। So biophysical profile include में से कौन सा include नहीं करती? So the right answer is option B। B is the right answer because biophysical profile include movement, fetal tone, fetal breathing movement and amniotic fluid volume, but it does not include fetal weight। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। द रिस्क ऑफ पोस्टमार्टम यूटेराइन एटोनी इज एसोसिएटेड विद। द रिस्क ऑफ पोस्टमार्टम यूटेराइन एटोनी इज एसोसिएटेड विद। पोस्टमार्टम यूटेराइन एटोनी एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, ऑप्शन सी मीडियन एपिजियोटोमी, ऑप्शन डी ट्विन प्रेगनेंसी। सो प्लीज आंसर गैस करें
सो द रिस्क ऑफ पोस्टमार्टम यूट्राइन एटोनी मैक्सिमम किसके साथ एसोसिएशन हो सकता है, गैस करना है आपको। सो द राइट आंसर, प्लीज गैस द आंसर, एंड द राइट आंसर इज twin pregnancy. The risk of postpartum uterine atony is maximum with the ladies who have twin pregnancy. Remember, very important question. अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरिनेटल डेथ इन मोनोएम्नियोटिक ट्विन इज। ऑप्शन ए कॉर्ड entrapment, ऑप्शन बी कॉर्ड प्रोलैप्स, ऑप्शन सी ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ऑप्शन डी lethal congenital anomalies. Very important question. So the most common cause of perinatal death in monoamniotic twin, ये आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, बाकी 20 क्वेश्चन और रिमेनिंग है जो कि मैं पार्ट सेकंड में डाल दूंगा दोस्तों। और इस ये क्वेश्चन से इसकी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लिंक को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों हमें मोटिवेट करती है और अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।